Yes. Is title slide visible, Apeksha? Okay. And my voice, what about my voice? Clear? Is it clear? Okay, okay. Okay. Now I am going to start this lecture number 6, unit number 3, atomic and molecular physics. Okay. In this lecture, we are going to see what interaction energy expression for JJ coupling. Okay. So first of all, we will see the important questions. So these are the important questions. Okay, this question was asked in summer 17. Obtain an expression for interaction energy and JJ coupling in case of 2 valence electron system. ये 8 मार्क के लिए पूछा गया क्वेश्चन है. Similarly, one question was also asked, explain interaction energy in JJ coupling. That is also for 8 marks in recently summer 2023. तो जैसे हमने we have seen interaction energy in LS coupling, similar way we will derive the expression of interaction energy for JJ coupling. What is the difference between LS coupling and JJ coupling? LS coupling में क्या होगा, पहले इंडिविजुअल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कंबाइन होकर रिजल्टेंट कैपिटल एल बनाते हैं. इंडिविजुअल स्पिन एंगुलर मोमेंटम कंबाइन होके रिजल्टेंट कैपिटल एस बनाते हैं और फिर कैपिटल एल दैट इज रिजल्टेंट एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और कैपिटल एस रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम कंबाइन होके टोटल एंगुलर मोमेंटम बनाते हैं. लेकिन JJ कपलिंग में, बट व्हाट अबाउट इन JJ कपलिंग? इन JJ कपलिंग इंडिविजुअल स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पहले कंबाइन होते हैं. पहले एल प्लस स्मॉल एस कंबाइन होता है. ओके, और स्मॉल जे बनता है. ओके, देन स्मॉल जे विल कंबाइन टू फॉर्म कैपिटल जे. मतलब क्या है कि इंडिविजुअल ऑर्बिटल और इंडिविजुअल स्पिन एंगुलर मोमेंटम पहले कंबाइन होते हैं और स्मॉल जे इंडिविजुअल टोटल एंगुलर मोमेंटम बताते हैं और फिर हर इलेक्ट्रॉन के इंडिविजुअल टोटल एंगुलर मोमेंटम दैट इज स्मॉल जे कंबाइन होके कैपिटल जे बनाते हैं. तो ये डिफरेंस है. ओके, JJ कपलिंग एंड LS कपलिंग में, ये हमने देखा था. नाउ वी विल सी द डेरिवेशन इंटरेक्शन एनर्जी इन JJ कपलिंग. Okay, we know that for single valence electron the interaction energy is given by this expression. This expression we have seen in last lecture also. Gamma equal to A dash L star S star cos L star S star. Okay, what is A dash? A dash is constant. And what is L dash? L star is angular orbital angular momentum for a single electron, and S dash is spin angular momentum for that electron. Okay, so this is the standard expression for the interaction energy for single valence electron. But what will happen when there are two electrons? दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये एक्सप्रेशन कैसे चेंज होगा, और दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा? तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे. इफ देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स देन देयर विल बी टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. एक इलेक्ट्रॉन को हमने L1 स्टार बोल दिया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को, और दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हमने L2 स्टार बोल दिया. राइट, तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन के दो स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होंगे. एक को हम बोलेंगे S1 स्टार, देन दूसरे को हम बोलेंगे S2 स्टार. ओके, then what will happen when there are two electrons? In case of two valence electrons there are four angular momenta which are the L1 star. This is the orbital angular momentum of first electron. What about S1 star? This is the spin angular momentum of first electron. What is L2 star? This is the orbital angular momentum of second electron. What is S2 star? It is the orbital spin angular momentum of second electron. तो चार angular momenta होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो, और एक इलेक्ट्रॉन होगा तो सिर्फ दो ही होंगे. राइट, सो what about the interaction between them? We have seen this in last lecture also. The interaction between there are 6 possible interaction. L1 S1 के साथ, L2 S2 के साथ, L1 S2 के साथ, L2 S1 के साथ, L1 L2 के साथ, S2 S1 S2 के साथ. ऐसे 6 टाइप्स के इंट्रैक्शन होंगे. जस्ट the interaction with L1 star with S1 star, the interaction with L2 star with S2 star, the interaction with L1 star with L2 star, the interaction of S1 star with S2 star, and cross the interaction of L1 star with S2 star and the interaction of L2 star with S1 star. So there are 6 possible interaction. Okay, there are 6 possible interaction. Again I am showing this 6 possible interaction. Okay, the interaction of L1 star with S1 star, the interaction of L2 star with S2 star, the interaction of L1 star is with L2 star, the interaction of S1 star with S2 star, the interaction of L1 star with S2 star, the interaction of L2 star with S1 star. So 6 possible interaction. Okay, L1 star with L2 star, S1 star with S2 star, L1 star with S1 star, L2 star with S2 star, L1 star with S2 star, and L2 star with
S1 star. But we know that as per the last lecture is concerned for the interaction energy in LS coupling, we know that the interaction fifth and sixth interaction is are very weak interaction. So L1 star with S2 star and L2 star with S1 star are very weak interaction, so we can neglect this interaction, fifth and sixth interaction. ओके तो फिफ्थ और सिक्स इंटरेक्शन नेग्लिजिबल रहेंगे, तो ये हम निग्लेक्ट करेंगे फिफ्थ और सिक्स इंटरेक्शन. तो बचेंगे कितने? देयर आर फोर इंटरेक्शन. ओके, देयर आर फोर इंटरेक्शन is remained, are remained. So which four interaction? L1 star with L2 star, S1 star with S2 star, L1 star with S1 star, L2 star with S2 star. But which interaction is more dominant out of four interaction? We know that the interaction number 5 and interaction number 6, these two interactions are negligible. ओके तो कितने? ओनली फोर इंटरेक्शंस आर लेफ्ट. कौन से? फर्स्ट इंटरेक्शन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो आउट ऑफ फोर विच टू इंटरेक्शंस आर प्रीडोमिनेंट, विच टू इंटरेक्शंस आर डोमिनेंट? तो कौन से? ये दो इंटरेक्शंस ज़्यादा डोमिनेंट रहेंगे, L1 स्टार विथ S1 स्टार एंड L2 स्टार विथ S2 स्टार. वाई? बिकॉज JJ कपलिंग में क्या होता है? इन JJ कपलिंग L1 एंड S1 फर्स्टली कंबाइन टू फॉर्म स्मॉल j1, L2 and S2 combine to form small j2. इसका मतलब कि इंडिविजुअल ऑर्बिटल और इंडिविजुअल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इंडिविजुअल ऑर्बिटल और स्पिन ऑर्बिटल मोमेंट, इंडिविजुअल ऑर्बिटल एंड इंडिविजुअल स्पिन एंगुलर मोमेंटम कंबाइन होके रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम बनता है स्मॉल j. स्मॉल l और स्मॉल s कंबाइन होके बनता है स्मॉल j. दैट्स वाई द इंटरेक्शन नंबर 3 एंड इंटरेक्शन नंबर 4 आर डोमिनेंट एज कंपेयर टू द इंटरेक्शन नंबर 1 एंड 2. ओके, तो इंटरेक्शन नंबर 3 और 4 ज़्यादा डोमिनेंट होंगे. ओके, इसलिए इनकी इंटरेक्शन एनर्जी हम पहले लिखेंगे. ओके, देन इंटरेक्शन नंबर 1 एंड 2 की इंटरेक्शन एनर्जी लिखेंगे. सो ओके, तो इंटरेक्शन नंबर 3 की इंटरेक्शन एनर्जी को हम गामा 1 बोलेंगे, इंटरेक्शन नंबर 4 की इंटरेक्शन एनर्जी को हम गामा 2 बोलेंगे, और फिर फर्स्ट की इंटरेक्शन की एनर्जी को हम गामा 1 बोलेंगे, और सेकेंड इंटरेक्शन की एनर्जी को हम गामा 4 बोलेंगे. ओके, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस एनर्जी. Okay, just I have quoted that sentence. Okay, same that I earlier explained. In JJ coupling the interaction 5 and 6 are negligible. तो पांचवा और छठवा हम निग्लेक्ट करेंगे. But LS interaction is predominant, therefore interaction energy for first 4 interaction will be. तो LS interaction means this LS, L1 star with S1 star and this L2 star with S2 star. तो interaction number 3 and 4 are predominant. Okay, they are predominant as compared to 1 and 2. ओके, तो 3 वाले इंटरेक्शन की इंटरेक्शन एनर्जी को हम गामा 1 बोलेंगे और 4 वाले इंटरेक्शन एनर्जी को हम गामा 2 बोलेंगे, और फर्स्ट और सेकेंड इंटरेक्शन एनर्जी को इंटरेक्शंस की एनर्जी को हम गामा 3 एंड गामा 4 बोलेंगे. तो इस तरीके से द इंटरेक्शन एनर्जीज आर गिवन बाय. We know that the formula for interaction energy, this is the first interaction energy, this is the interaction between L1 star and S1 star. So interaction energy will be gamma 1 equal to A1 dash L1 star S1 star and cos of L1 star S1 star. Similarly, gamma 2, this is the interaction energy for this interaction number 4. Okay, A2 dash L2 star, this is L2 star and this is S2 star. So A2 dash L2 star S2 star cos L2 star and S2 star. So this gamma 3 is the interaction energy of first interaction. Okay, gamma 3 is equal to A3 dash L1 star L2 star cos of L1 star S2 star L2 star. Okay, similarly this gamma 4 is the interaction energy for the second interaction, gamma 4 equal to A4 dash S1 star, okay, into S2 star and cos of S1 star and S2 star. So there will be 4 interactions energy, there will be 4 interactions are left and there will be corresponding 4 interactions energy, और पांचवा और छठवा interactions हमने neglect कर दिया. Okay, because of these interactions are negligible. तो अब क्या करेंगे? इंटरेक्शन एनर्जी गामा 1, गामा 2, गामा 3 और गामा 4 हम 1 by 1 सॉल्व करेंगे. ओके, वी विल सॉल्व 1 by 1 एंड वी विल फाइंड आउट गामा 1, गामा 2, गामा 3 एंड गामा 4. सो गामा 1 इज नथिंग बट A1 dash L1 star S1 star cos L1 star S1 star. तो ये we will find out the value of cos L1 star and S1 star. And we know that in JJ coupling L and S combine to form small j, right? So similarly L1 star combine with S1 star to form small j1 star, right?
So if I want to find out the gamma 1, and we know that L1 star combined with S1 star to form small J1 star, it means that L1 star and S1 star precess about J1 star. तो स्मॉल L1 और S1 कंबाइन होके बनता है J1. तो दैट L1 एंड S1 क्या करते हैं, वो J1 के अराउंड, रिजल्टेंट J1 के अराउंड क्या करते हैं, प्रिसेस करते हैं. ओके, तो प्रिसेस करते हैं तो क्या कर सकते हैं हम, ये कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं. ओके, जस्ट वी विल सी. ओके, यही हम देखेंगे प्रीसेस करने के बाद किस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं. ओके, दिस वन. सो वी नो दैट इन JJ कपलिंग L1 स्टार एंड S1 स्टार प्रीसेस अबाउट रिजल्टेंट J1 स्टार. L1 स्टार और S1 स्टार क्या करते हैं, J1 स्टार के अराउंड प्रीसेस करते हैं. तो प्रीसेस करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, L1 स्टार और S1 स्टार मिल के कंबाइन होकर क्या बनता है, J1 स्टार. इट मीन्स दैट L1 स्टार और S1 स्टार प्रीसेस, ओके, प्रीसेस करते हैं किसके, रिजल्टेंट J1 स्टार के अराउंड. तो हम लिख कैसे सकते हैं इस एक्सप्रेशन को, ऐसे लिख सकते हैं J1 स्टार स्क्वायर इज इक्वल टू L1 स्टार स्क्वायर प्लस S1 स्टार स्क्वायर प्लस ट्वाइस L1 स्टार S1 स्टार कॉस ऑफ L1 स्टार S1 स्टार. तो ये फॉर्मूला हमने देखा था. If suppose there are two vectors precess about a resultant, then we can write this formula. Okay, resultant means J1's resultant, the square of resultant J1 star is equal to L1 star square plus S1 star square plus twice L1 star S1 star cos of L1 star S1 star. Okay, then we'll bring these two terms into left hand side. So L1 स्टार स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, S1 स्टार स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो दिस विल गेट J1 स्टार माइनस L1 स्टार स्क्वायर माइनस S1 स्टार स्क्वायर इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में क्या रहेगा, ट्वाइस L1 स्टार S1 स्टार cos ऑफ L1 स्टार S1 स्टार. अब नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos L1 स्टार एंड S1 स्टार. So this is in the multiplication. If we bring this to left side, so it will be go into denominator. Okay, so we'll find out the value of cos L1 star. So this term will shift to the left hand side, to it will go into the denominator. So we'll get the value of cos L1 star S1 star J1 star square minus L1 star square minus S1 star square divided by twice L1 star and S1 star. So this is the value of cos L1 star and S1 star. Similarly, we can find out the value of cos L2 star and S2 star. just ये 1 1 1 1 के लिए, L1 S1 के लिए हमने ये वैल्यू निकाले cos की. उसी तरीके से हम L2 S2 के लिए निकाल सकते हैं. just replace 1 by 2, तो क्या हो जाएगा, तो we can find out the value of cos. L1 की जगह L2 रख दो, S1 की जगह S2 रख दो, J1 की जगह J2 रख दो. तो सिमिलरली J1 की जगह J2 रखा, L1 की जगह L2 रखा, S1 की जगह S2 रखा. Okay, so we will get the value of cos L2 star and S2 star. So similarly 1 की जगह 2 रख दो, तो हम cos L2 star और S2 star की वैल्यू भी इस तरीके से निकाल सकते हैं. तो दैट विल बी J1 की जगह J2 रखो, L1 की जगह L2 रखो, ओके, S1 की जगह S2 रखो. तो सिमिलरली विल गेट द J2 स्टार स्क्वायर माइनस L2 स्टार स्क्वायर माइनस S2 स्टार स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस L2 स्टार S2 स्टार, एंड दिस विल बिकम द वैल्यू ऑफ cos L2 स्टार एंड S2. सिमिलरली cos L2 स्टार एंड S2 स्टार की वैल्यू हम निकाल सकते हैं. तो दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 6. तो हमने cos L1 स्टार S1 स्टार की वैल्यू फाइंड आउट किए, हमने cos L2 स्टार और S2 स्टार की वैल्यू फाइंड आउट किए, और ये है cos L1 स्टार और cos L2 स्टार S2 स्टार की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 2 में रखेंगे. ओके, कौन सा इक्वेशन नंबर, ये देखो, दिस इक्वेशन नंबर 1 2 में रखेंगे. वी हैव फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ cos L1 स्टार S1 स्टार, cos L2 स्टार S2 स्टार. तो ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 और 6 में से इक्वेशन नंबर 1 2 में रखेंगे, तो हमको गामा 1 और गामा 2 के इंटरेक्शन एनर्जी मिल जाएंगी. ओके, जस्ट वी विल डू दैट स्टेप्स. ओके, putting the value of cos L1 star S1 star from equation number 5 to 1. This is the value of cos L1 star and S1 star from equation 5 to equation number 1. Equation number 1 कौन सा है? Okay, this is the equation number 1. This is the equation number 1. तो यहाँ पे cos L1 star S1 star की वैल्यू डाल देंगे, तो क्या मिलेगा हमको? The equation number 1 implies, okay, दिस इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, तो cos L1 स्टार और S2 स्टार की ये टोटल वैल्यू हमने डाल दी यहाँ पे. तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज 1 कैसे बनेगा, गामा 1 इक्वल टू A1 डैश
L1 स्टार S1 स्टार, तो ये cos L1 स्टार S1 स्टार की वैल्यू डाले, राइट. नाउ वी कैन सी दैट L1 स्टार एंड S1 स्टार इन न्यूमरेटर, L1 स्टार एंड S1 स्टार इन डिनोमिनेटर, तो दे कैन बी कैंसल आउट. सो एंड और ये जो 2 बचा यहाँ पे, दिस 2 विल गो इनटू फ्रंट. ओके, तो गामा 1 इक्वल टू A1 डैश डिवाइडेड बाय 2, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट, ये टर्म बचेगा. तो गामा 1 इज इक्वल टू A1 डैश डिवाइडेड बाय 2 इनटू J1 स्टार स्क्वायर माइनस L1 स्टार स्क्वायर माइनस S1 स्टार स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन नंबर 7. तो इस तरीके से फर्स्ट इंटरेक्शन एनर्जी गामा 1 दैट वी गॉट. Similarly putting the value of cos L2 star S2 star from equation number 6. कौन सा इक्वेशन नंबर 6? ये इक्वेशन नंबर 6. cos L2 star S2 star की वैल्यू हम रखेंगे कौन से इक्वेशन नंबर 2 में. इस इक्वेशन नंबर 2 में cos L2 star और S2 star की वैल्यू रखेंगे. सो we can find out gamma 2 also from that same process. Okay, तो क्या किया हमने, सिमिलरली पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos L2 star S2 star फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 टू इक्वेशन नंबर 2. सो इक्वेशन नंबर 2 implies gamma 2 इक्वल टू A2 डैश L2 star S2 star. ओके, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ cos L2 star S2 star. This is the value of cos L2 star S2 star. So we can see in numerator L2 star S2 star is there, in denominator L2 star S2 star is there, so they can be cancelled out. ओके, 2 कैंसिल नहीं होगा, L2 स्टार S2 स्टार और L2 स्टार S2 स्टार कैंसिल होगा, 2 बचेगा. ओके, दैट 2 आई विल ब्रिंग इन फ्रंट. सो विल गेट गामा 2 इक्वल टू A2 डैश डिवाइडेड बाय 2 J2 स्टार स्क्वायर माइनस L2 स्टार स्क्वायर माइनस S2 स्टार स्क्वायर. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 8. तो अभी इस तरीके से हमको इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 से गामा 1 और गामा 2 फर्स्ट इंटरेक्शन एनर्जी एंड सेकंड इंटरेक्शन एनर्जी हमको फाइंड आउट हुई, गामा 1 एंड गामा 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 8. तो ये गामा 1 गामा 2 मिल गए. तो अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट गामा 3 एंड गामा 4. वी गॉट गामा 1 फर्स्ट इंटरेक्शन एनर्जी, गामा 2 सेकंड इंटरेक्शन एनर्जी, but now we have to find gamma 3 and gamma 4. So after finding out gamma 3 and gamma 4, we can say that we can find out the total interaction energy. So now we will find out gamma 3 and gamma 4. Again I am showing the previous 4 equations. Okay, these 4 equation, we have found out gamma 1, we have found out gamma 2. Now we have to find out gamma 3 and gamma 4. So we will add equation number 3 and 4. तो हम gamma 3 और gamma 4 को साथ में फाइंड आउट करेंगे. तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को हम ऐड करेंगे, बोथ द साइड्स ऐड करेंगे, एडिंग बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4. तो ऐड करने से क्या होगा, गामा 3 प्लस गामा 4 ये साइड भी ऐड हो जाएगी, दिस प्लस दिस. सो एडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 वी विल गेट द वैल्यू ऑफ गामा 3 प्लस गामा 4, दिस टर्म प्लस दिस टर्म. ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 3, एडिंग बोथ साइड्स ऑफ, now adding both sides of equation number 3 and 4. Why we are adding both sides of equation number 3 and 4? Because we want to find out the value of gamma 3 plus gamma 4. We already find out the value of gamma 1 from equation number 7. Okay, similarly we have found out the value of gamma 2 from equation number 8. Now we have to find out the value of gamma 3 and gamma 4. So we have to add the equation number 3 and 4. What is equation number 3 and 4? Gamma 3 plus gamma 4. So after adding equation number 3 and 4 both the sides, we'll get this one, gamma 3 plus gamma 4 is equal to A3 dash L1 star L2 star cos L1 star L2 star plus A4 dash S1 star S2 star cos S1 star S2 star. तो ऐड करने के बाद हमको ये चीजें मिलेंगी. now we will expand these terms. अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम ये जो कॉस वाली टर्म है और ये जो 2 कॉस वाली टर्म्स हैं उसको हम एक्सपांड करेंगे. लास्ट लेक्चर में भी हमने क्या किया था, एक कॉस वाली टर्म्स को 3 कॉस के टर्म्स में स्प्लिट किया था, दूसरे कॉस वाली टर्म को 3 कॉस के टर्म्स में स्प्लिट किया था. तो हम क्या करेंगे, अब ये कॉस, क्योंकि ये एवरेज वैल्यू है, ये कॉस की क्या है, एवरेज वैल्यू, ये भी कॉस की क्या है, एवरेज वैल्यू. तो ये मीन वैल्यू को हम 3 कंपोनेंट में स्प्लिट करेंगे. हम ये मीन वैल्यू ऑफ कॉस को हम क्या करेंगे, 3 वैल्यूज में स्प्लिट करेंगे कॉस के. तो कौन कौन से वैल्यूज होंगे, ये कॉस की टर्म 3 कॉस के टर्म्स में स्प्लिट होंगी, ये कॉस की टर्म 3 कॉस के टर्म्स में स्प्लिट होंगे. तो कैसे स्प्लिट होंगी, देखो नेक्स्ट स्टेप में, इन दिस स्टेप गामा 3 प्लस गामा 4 A3 dash L1 star L2 star. Now this cos term will be splitted into 3 cos terms, 1 2 3. Similarly this cos term will be splitted into 3 cos terms, 1
2 3 बिकॉज दिस कॉस इज द एवरेज वैल्यू। तो कैसे होगा ये कॉस L1 स्टार एंड L2 स्टार। हम पता है कि L1 स्टार प्रीसेस अबाउट J1 स्टार एंड L2 स्टार इज प्रीसेस अबाउट J2 स्टार। तो क्या होगा ये कॉस की टर्म्स एक कॉस के टर्म में स्प्लिट होंगी कॉस L1 स्टार L1 स्टार L1 स्टार इज प्रीसेस अबाउट J1 स्टार सो कॉस L1 स्टार J1 स्टार। सिमिलरली दूसरी कॉस की टर्म क्या होगी दिस L2 स्टार इज प्रीसेस अबाउट J2 स्टार तो कॉस L2 स्टार इंटू J2 स्टार। ओके सिमिलरली थर्ड टर्म क्या होगी थर्ड टर्म बोथ L1 एंड L2 आर प्रीसेस अबाउट J1 एंड J2 सो थर्ड टर्म होगी कॉस J1 स्टार एंड J2 स्टार। सो दिस कॉस टर्म will be splitted into 3 cost terms. Okay, again I am repeating this sentence, this cost term will be splitted into 3 cost terms. तो पहली टर्म क्या होगी we know that L1 star is precess about J1 star तो फर्स्ट टर्म क्या होगी cos L1 star J1 star। we know that L2 star is precess about J2 star तो सेकंड कॉस्ट टर्म क्या होगी cos L2 star J2 star and again we know that both L1 and L2 precess about J1 and J2 थर्ड टर्म क्या होगी cos J1 star and J2 star। ओके तो ये हो गया दिस कॉस्ट टर्म विल बी स्प्लिटेड इनटू 3 कॉस्ट टर्म्स। सिमिलरली दिस सिंगल कॉस्ट टर्म विल बी स्प्लिटेड इनटू 3 कॉस्ट टर्म। वी नो दैट S1 स्टार इज प्रीसेस अबाउट J1 स्टार cos S1 स्टार J1 स्टार एंड वी आल्सो नो दैट S2 स्टार इज प्रीसेस अबाउट J2 स्टार cos S2 स्टार J2 स्टार एंड थर्ड वी नो दैट cos बोथ S1 एंड S2 आर प्रीसेस अबाउट J1 एंड J2 तो cos J1 स्टार एंड J2 स्टार। तो दिस सिंगल कॉस्ट टर्म विल आल्सो बी स्प्लिटेड इनटू 3 कॉस्ट टर्म्स। ओके समझ में आया। तो ये कॉस्ट टर्म भी 3 टर्म्स में स्प्लिट होगी। ओके कौन कौन सी cos L1 स्टार J1 स्टार cos L2 स्टार J2 स्टार cos J1 स्टार J2 स्टार। सिमिलरली ये कॉस्ट टर्म भी 3 कॉस्ट टर्म्स में स्प्लिट होंगी cos S1 स्टार J1 स्टार cos S2 स्टार J2 स्टार एंड cos J1 स्टार J2 स्टार। ओके अब नेक्स्ट टर्म क्या है ओके अब नेक्स्ट टर्म में क्या होगा कि ये cos का फॉर्मूला लगाएंगे हम। वी नो दैट cos L1 L2 क्या होता है कि cos J1 J2 क्या होता है cos J1 J2 क्या होता है cos L2 स्टार J2 स्टार क्या होता है। तो ये फॉर्मूला जैसे हमने पिछले इसमें लगाया था अगेन आई एम शोइंग लास्ट स्लाइड वेयर वी हैव पुट दिस कॉस्ट फॉर्मूला। ओके सो yes if suppose you know that this L1 star and S1 star precess about resultant J1 star so we have written that J1 star is equal to L1 star square plus S1 star square plus twice L1 star S1 star cos L1 star S1 star। Similarly in this way we use this formula। okay which formula this again I am showing this formula। okay so this cos L1 star J1 star okay I will use one formula। okay which formula just see that this cos L1 star J1 star okay I apply this formula this will be L1 star square plus J1 star square और यहाँ पे S1 है क्या नहीं है because S1 is also precess about J1 star but here is no S1 only L1 and J1 तो minus S1 star square divided by twice L1 star एंड J1 स्टार। तो ये जो फॉर्मूला है पिछली बार भी हमने पिछले डेरिवेशन में ये फॉर्मूला यूज किए थे। ओके अगेन आई एम शोइंग दिस कॉस्ट वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर दिस कॉस्ट टर्म। जस्ट लुक एट दिस कॉस्ट टर्म cos L1 स्टार J1 स्टार तो क्या हो जाएगा L1 स्टार स्क्वायर J1 है यहाँ पे J1 स्टार स्क्वायर S1 है क्या यहाँ पे नहीं है L1 है J1 है S1 नहीं है इसलिए माइनस S1 स्टार स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस क्या क्या है ट्वाइस L1 स्टार एंड J1 स्टार। तो ये फॉर्मूला इसमें लगा दिया। अब माइनस S1 इसलिए क्या कि देयर इज नॉट S1 एंड वी नो दैट L1 प्लस S1 इज J1 लेकिन S1 है क्या यहाँ पर नहीं है इसलिए माइनस S1 स्टार स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस L1 स्टार J1 स्टार। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस कॉस्ट टर्म we will apply the formula for this cosine term cos L1 star J1 star okay it will be L1 star square L1 है इसलिए L1 star square plus J1 है इसलिए J1 स्टार स्क्वायर S1 है क्या नहीं माइनस S1 स्टार स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस L1 स्टार एंड J1 स्टार। तो ये कॉस का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। सेकंड अब ये कॉस को भी दूसरा फॉर्मूला ये सेम फॉर्मूला इस कॉस के टर्म्स को भी लगाएंगे cos L2 स्टार एंड J2 स्टार। सिमिलरली L2 स्टार स्क्वायर प्लस J2 स्टार स्क्वायर माइनस यहाँ पे S2 है क्या नहीं माइनस S2 स्टार स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस L2 स्टार एंड J2 स्टार। ओके तो ये कॉस का भी फॉर्मूला इस कॉस के टर्म को लगाया हमने।
इस कॉस का भी फॉर्मूला इस कॉस के टर्म्स को लगाया तो ये मिली हमको टर्म, और थर्ड टर्म जैसी है वैसी रहेंगी, सेम एज इट इज कॉस J1 स्टार एंड J2 स्टार, तो कॉस J1 स्टार एंड J2 स्टार एज इट इज रहेंगी, प्लस A4 डैश S1 स्टार S2 स्टार फॉर A4 डैश S1 स्टार S2 स्टार। ओके, अब ये वाला भी कॉस को फॉर्मूला लगाएंगे हम, कॉस S1 स्टार J1 स्टार, कॉस S1 स्टार J1 स्टार कैसे, S1 स्टार स्क्वायर S1 स्टार स्क्वायर J1 स्टार स्क्वायर प्लस J1 स्टार स्क्वायर माइनस यहाँ पे S2 है क्या, ओके माइनस यहाँ पे L1 है क्या, सॉरी S1 है J1 है, L1 है क्या, नहीं, माइनस L1 स्टार स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस S1 स्टार ट्वाइस S1 स्टार एंड J1 स्टार ट्वाइस J1 स्टार। ओके, सिमिलरली ये कॉस S2 स्टार और J2 स्टार को भी फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, S2 स्टार स्क्वायर प्लस J2 स्टार स्क्वायर J2 स्टार, S2 और J2 है, L2 है क्या यहाँ पे, नहीं है, माइनस L2 स्टार स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस S2 स्टार J2 स्टार ट्वाइस S2 स्टार J2 स्टार। ओके, इनटू जो है कॉस J1 स्टार और J2 स्टार जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। तो इस तरीके से वी हैव अप्लाइड द फॉर्मूला फॉर कोसाइन, दिस कॉस टर्म, ओके, और ये वाली कॉस टर्म और ये वाली कॉस टर्म, और फॉर्मूला क्या है अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस कॉस L1 स्टार J1 स्टार इज नथिंग बट L1 स्टार स्क्वायर J1 स्टार स्क्वायर माइनस यहाँ पे S1 है क्या, नहीं, माइनस S1 स्टार स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस L1 स्टार J1 स्टार। तो इस तरीके से मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया। ओके, इस तरीके से अभी जो टर्म हमारी कैंसिल हो रही है वो टर्म कैंसिल कर सकते हैं। जस्ट लुक एट दिस टर्म, L1 स्टार इज इन न्यूमरेटर, L1 स्टार इज इन डिनोमिनेटर, दिस विल बी कैंसल आउट। ओके, सिमिलरली L2 स्टार इन डिनोमिनेटर, okay, this L2 star is in denominator, L2 star in numerator, so this will cancel out, L2 star भी cancel हो गया। Similarly this S1 star in numerator and this S1 star in denominator, तो S1 star cancel। Similarly this S2 star in numerator and this S2 star in denominator, तो ये भी cancel हो जाएगा, S2 star। तो after cancelling out these terms, okay, we are left with जो भी टर्म्स अब हमारे पास बचे, ओके, ये टर्म्स हमारे पास बचे, गामा 3 प्लस गामा 4 इक्वल टू A3 डैश, ओके, इन द ब्रैकेट L1 स्टार स्क्वायर प्लस J1 स्टार स्क्वायर माइनस S1 स्टार स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस J1 स्टार इंटू L2 स्टार स्क्वायर प्लस J2 स्टार स्क्वायर माइनस S2 स्टार स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस J2 स्टार कॉस J1 स्टार J2 स्टार प्लस A4 डैश S1 स्टार स्क्वायर प्लस J1 स्टार स्क्वायर माइनस L1 स्टार स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस J1 स्टार into S2 स्टार स्क्वायर प्लस J2 स्टार स्क्वायर माइनस L2 स्टार स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस J2 स्टार कॉस J1 स्टार इंटू J2 स्टार। तो ये चीज़ें अभी हमारे पास बची। ओके, नाउ वी आर डीलिंग विद द इंट्रैक्शन, डेरिवेशन ऑफ इंट्रैक्शन एनर्जी, ओके, इन JJ कपलिंग, और लास्ट में वो पिछले लेक्चर में क्या किए थे, इंट्रैक्शन एनर्जी फॉर LS कपलिंग। तो जब LS कपलिंग के लिए हमने डेरिवेशन किए तो हमने बीच वाली स्टेप्स में क्या किया था, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय LS किया था, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय LS किया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड, ये तो JJ कपलिंग है, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग ऑन राइट हैंड साइड बाय J1 स्टार एंड J2 स्टार। तो वहाँ पे हम क्या किया था, LS स्टार और S स्टार, क्योंकि वो LS कपलिंग वाला डेरिवेशन था। तो वहाँ पे अगर याद आ रहा होगा या फिर से आप रिकॉल कर सकते हो डेरिवेशन। ओके, सो इन दैट लेक्चर वी हैव डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड राइट हैंड साइड बाय L स्टार एंड S स्टार। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाइंग ऑन राइट हैंड साइड, ओके, बाय J1 स्टार एंड J2 स्टार, बिकॉज हियर इज JJ कपलिंग है, इसलिए J1 और J2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वहाँ LS कपलिंग था इसलिए L स्टार और S स्टार से मल्टीप्लाई किया था। ओके, सो नाउ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय J1 स्टार J2 स्टार ऑन राइट हैंड साइड फॉर बोथ द टर्म्स। यहाँ पे दो टर्म्स है राइट हैंड साइड में, ये एक पूरी टर्म यहाँ तक प्लस ये A3 वाली टर्म पूरी यहाँ तक और ये A4 डैश वाली टर्म पूरी, दो टर्म्स है। तो दोनों टर्म को मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय J1 स्टार और J2 स्टार से करेंगे। तो इस तरीके से, तो देखो ये पहली टर्म A3 वाली टर्म्स है, उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय J1 स्टार एंड J2 स्टार, J1 स्टार J2 स्टार डिवाइडेड बाय J1 स्टार J2 स्टार, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय J1 स्टार एंड J2 स्टार फर्स्ट टर्म। सिमिलरली प्लस A4 डैश, ये पूरी टर्म को मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय J1 स्टार एंड J2 स्टार, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय J1 स्टार एंड J2 स्टार, ये सेकंड टर्म। ओके, ये मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों को देखा होगा कि यहाँ पे जो जस्ट सी हियर इन डिनोमिनेटर J1 स्टार है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में J1 स्टार है। ओके, यहाँ डिनोमिनेटर में J1 स्टार, डिनोमिनेटर में J1 स्टार, तो J1 स्टार इंटू J1 स्टार स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखो J2 स्टार है,
यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में J2 स्टार है, तो J2 स्टार मल्टीप्लाई हो गया J2 स्टार स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में J1 स्टार है, यहाँ पे भी J1 स्टार है, तो J1 स्टार मल्टीप्लाई होकर J1 स्टार स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में J2 स्टार है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में J2 स्टार है, J2 स्टार मल्टीप्लाई होकर J2 स्टार स्क्वायर हो जाएंगे। तो जो भी डिनोमिनेटर वाली टर्म्स है वो मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएंगे। तो J1 स्टार मल्टीप्लाई बाय J1 स्टार स्क्वायर, J2 स्टार मल्टीप्लाई बाय J2 स्टार स्क्वायर। सिमिलरली हियर इन सेकंड टर्म J1 स्टार मल्टीप्लाई बाय J1 स्टार स्क्वायर। सिमिलरली J2 स्टार मल्टीप्लाई बाय J2 स्टार, डिनोमिनेटर वाले सारे टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट विल बी J2 स्टार स्क्वायर। और बचेंगे कौन से टर्म फिर, ये न्यूमरेटर वाले J1 स्टार इंटू J2 स्टार, और यहाँ पे भी न्यूमरेटर वाली टर्म बचेंगे ये J1 स्टार इंटू J2 स्टार। तो ये जो टर्म, ये J1 स्टार और J1 स्टार वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 J1 स्टार स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे 2 J2 है, तो ये J2 वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ आएगा 2 J2 स्टार स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ J1 है, तो यहाँ पे भी J1 है, J1 मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 J1 स्टार स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ J2 है स्टार है, यहाँ पे J2 स्टार है, तो J2 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्वाइस J2 स्टार स्क्वायर। तो ये देखेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, देखो मल्टीप्लाई करने के बाद देखो यहाँ पे बराबर आया ट्वाइस J1 स्टार स्क्वायर, यहाँ पे आया ट्वाइस J2 स्टार स्क्वायर, यहाँ पर आया ट्वाइस J1 स्टार स्क्वायर, यहाँ पे आया ट्वाइस J2 स्टार स्क्वायर, और डिनोमिनेटर वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी। अब सिर्फ बची कौन सी टर्म यहाँ पे, न्यूमरेटर वाली टर्म J1 स्टार एंड J2 स्टार। यहाँ पे भी क्या बचा J1 स्टार एंड J2 स्टार, ओनली न्यूमरेटर टर्म्स आर लेफ्ट, और डिनोमिनेटर वाली टर्म मल्टीप्लाई होकर यहाँ J1 था तो यहाँ J1 स्टार स्क्वायर हो गया, यहाँ J2 था तो J2 स्टार स्क्वायर हो गया। ओके, यहाँ J1 स्टार था तो यहाँ J1 स्टार स्क्वायर हो गया, यहाँ J2 स्टार था तो यहाँ J2 स्टार स्क्वायर हो गया। अब देखो कौन से टर्म्स यहाँ पे कॉमन दिख रहे हैं। ओके, वी कैन सी द कॉमन टर्म्स आर हियर, तो दीज आर द कॉमन टर्म्स, cos J1 स्टार J2 स्टार इंटू J1 स्टार J2 स्टार। यहाँ पर भी देखो cos J1 स्टार J2 स्टार इंटू J1 स्टार J2 स्टार, ये कॉमन टर्म्स हैं। तो ये कॉमन टर्म्स को हम कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट के बाहर, दीज आर दी कॉमन टर्म्स, और वी कैन टेक दिस टर्म एज अ कॉमन आउटसाइड द ब्रैकेट। ओके, तो कॉमन टर्म है, आउटसाइड द ब्रैकेट कर लिया, ये कॉमन टर्म है, ये भी कॉमन टर्म है आउटसाइड द ब्रैकेट, cos J1 स्टार J2 स्टार J1 स्टार J2 स्टार, दिस इज द कॉमन टर्म, वी कैन टेक इट आउटसाइड। अब बचा क्या है, इनर साइड में अभी क्या बचा है, A3 डैश L1 स्टार स्क्वायर प्लस J1 स्टार स्क्वायर माइनस S1 स्टार स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस J1 स्टार स्क्वायर इंटू L2 स्टार स्क्वायर प्लस J2 स्टार स्क्वायर माइनस S2 स्टार स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस J2 स्टार स्क्वायर A4 डैश S1 स्टार स्क्वायर J1 स्टार स्क्वायर माइनस L1 स्टार स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस J1 स्टार स्क्वायर इंटू S2 स्टार स्क्वायर प्लस J2 स्टार स्क्वायर माइनस L2 स्टार स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस J, और ये कॉमन टर्म। अब देखो ये जो फर्स्ट वाली A3 के साथ A3 डैश के साथ ये पूरी जो टर्म है येलो, जस्ट लुक एट दिस येलो टर्म विथ A3 डैश, तो ये सारी येलो टर्म को हम कांस्टेंट बोल देंगे बीटा 3, और ये जो सारी टर्म्स दिख रही है येलो टर्म्स उसको हम बोलेंगे बीटा 4। ओके, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था। ओके, ये सारी येलो वाली टर्म जो है A3 डैश के साथ दैट इज अ कांस्टेंट बीटा 3, और ये सारी जो येलो टर्म है ये A4 डैश के साथ, तो दिस इज नथिंग बट बीटा 4। तो ये हमने देखा था, तो इस येलो टर्म को बोलेंगे बीटा 3 और उस पूरे टर्म को हम बीटा 4। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, गामा 3 प्लस गामा 4 इज इक्वल टू A3 डैश बीटा 3 प्लस A4 डैश इंटू बीटा 4 कॉस J1 स्टार और J2 स्टार इंटू J1 स्टार। ये कहाँ से है, ये बाहर वाली टर्म थी। ओके, दिस बाहर, ये टर्म एज इट इज रहेंगी, ये सारी टर्म को मैंने बोल दिया बीटा 3, ये सारी टर्म को बोल दिया येलो वाली टर्म को बीटा 4। सो द इक्वेशन विल बी gamma 3 plus gamma 4 equal to A3 dash beta 3 plus A4 dash beta 4 into cos J1 star J2 star into J1 star J2 star। तो ये पूरी बीटा 3 कौन सी टर्म है, ये बीटा 3, ये सारी येलो टर्म को मैंने क्या बोल दिया बीटा 3, और बीटा 4 किसको बोला, ये पूरी येलो सेकेंड टर्म को मैंने क्या बोल दिया बीटा 4। ओके, सिंस बीटा, ये पूरी टर्म को मैंने क्या बोल दिया बीटा 3 यहाँ तक। जस्ट लुक एट माई माउस एरो, यहाँ से यहाँ तक दिस इज बीटा 3, यहाँ से यहाँ तक दैट इज बीटा 4। तो इक्वेशन हमारा अभी सिंप्लीफाई हो गया, गामा 3 प्लस गामा 4 इज इक्वल टू A3 डैश इंटू बीटा 3 प्लस A4 डैश इंटू बीटा 4, और ये जो कॉमन टर्म है cos J1 स्टार J2 स्टार J1 स्टार इंटू J2 स्टार वो वैसी की वैसी है। तो बीटा 3 पूरी टर्म को बीटा 3 बोला और दैट पूरी टर्म को हम बीटा 4 बोला। तो अब देखो ये वाली भी कांस्टेंट टर्म होगी हमारी पूरी, A3 डैश इंटू बीटा 3 प्लस A4 डैश इंटू बीटा 4, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में टर्म है ये भी एक कांस्टेंट टर्म है। A3 डैश इज कांस्टेंट, बीटा 3 इज कांस्टेंट, प्लस
f4 dash is constant, beta 4 is constant, तो all whole term in the bracket is the constant, तो इसको हम बोलेंगे कैपिटल ए। तो ये सारी स्क्वायर ब्रैकेट की टर्म को मैंने क्या बोल दिया, कैपिटल ए। सो हमारा इक्वेशन नंबर 9 क्या बना, गामा 3 प्लस गामा 4, ये सारी टर्म को मैंने क्या बोल दिया, स्क्वायर टर्म को, स्क्वायर ब्रैकेट की टर्म को ए इज इक्वल टू कॉस J1 स्टार इंटू J2 स्टार इंटू J1 स्टार इंटू J2 स्टार। दिस इज द इक्वेशन नंबर 10। ये फ्रॉम 9 से लिया हमने। ये सारी टर्म स्क्वायर ब्रैकेट की टर्म जो है उसको हमको क्या बोल दिया, ए। स्क्वायर ब्रैकेट की टर्म क्या है, A3 डैश इंटू बीटा 3 प्लस A4 डैश इंटू बीटा 4, A3 डैश इंटू बीटा 3 प्लस A4 डैश इंटू बीटा 4, ये सारी टर्म को मैंने बोल दिया ए। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन जो फाइनल इक्वेशन नंबर 10 बना, गामा 3 प्लस गामा 4 इज इक्वल टू ए कॉस J1 स्टार इंटू J2 स्टार इंटू J1 स्टार J2। ओके, अब हम फाइंड आउट करेंगे कॉस J1 स्टार। नाउ वी विल फाइंड आउट कॉस J1 स्टार एंड J2 स्टार की वैल्यू। ओके, वी विल फाइंड आउट कॉस J1 स्टार एंड J2 स्टार की वैल्यू, और वो फाइंड आउट कर लिया और इक्वेशन नंबर 10 में हम पुट कर देंगे कॉस J1 स्टार एंड J2 स्टार की वैल्यू। देन वी कैन फाइंड आउट द इंटरेक्शन एनर्जी थर्ड एंड फोर्थ इंटरेक्शन एनर्जी। ओके, सो नाउ टू फाइंड कॉस J1 स्टार एंड J2 स्टार, वी नो दैट J1 स्टार और J1 एंड J2 प्रिसेस करते हैं रिजल्टेंट कैपिटल J के अराउंड, क्योंकि J1 और J2 कंबाइन होकर क्या बनते हैं, रिजल्टेंट J। J1 प्लस J2 इज कैपिटल J। तो इस वी नो दैट J1 स्टार एंड J2 स्टार is precise about resultant capital J. We know that in JJ coupling J1 star and J2 star is precise about the capital J star. J1 star और J2 star किसके अराउंड घूमते हैं, कैपिटल J star। तो इसमें भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, that is कैपिटल J star square is equal to J1 star square plus J2 star square plus twice J1 J2 cos J1 star J2 star। इस तरीके से हमको पता है फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। वी नो दैट इन JJ कपलिंग J1 स्टार एंड J2 स्टार प्रिसेस अबाउट रिजल्टेंट J स्टार। तो रिजल्टेंट J स्टार स्क्वायर इज इक्वल टू J1 स्टार स्क्वायर प्लस J2 स्टार स्क्वायर प्लस ट्वाइस J1 स्टार J2 स्टार कॉस ऑफ J1 स्टार J2 स्टार। इस तरीके से वी नो दैट J1 स्टार एंड J2 स्टार प्रिसेस अबाउट रिजल्टेंट J स्टार। तो रिजल्टेंट J स्टार स्क्वायर इक्वल टू J1 स्टार स्क्वायर प्लस J2 स्टार स्क्वायर प्लस ट्वाइस J1 स्टार J2 स्टार कॉस ऑफ J1 स्टार इंटू J2 स्टार। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बनेगा। नाउ आई विल ब्रिंग दिस J1 स्टार एंड J2 स्टार इंटू लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ से यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ तो माइनस होगा, तो J स्टार कैपिटल J स्टार स्क्वायर माइनस J1 स्टार स्क्वायर माइनस J2 स्टार स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस J1 स्टार J2 स्टार कॉस ऑफ J1 स्टार J। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कॉस ऑफ J1 स्टार इंटू J2 स्टार। तो ये जो टर्म है मल्टीप्लीकेशन में, इसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो डिवाइड में बनेंगे। तो हमको क्या मिलेगा फिर, वी गेट J स्टार स्क्वायर माइनस J1 स्टार स्क्वायर माइनस J2 स्टार स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये टर्म इधर गई तो डिवाइडेड बाय ट्वाइस J1 स्टार J2 स्टार इज इक्वल टू कॉस ऑफ J1 स्टार J2 स्टार। तो इस तरीके से वी हैव फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ J1 स्टार एंड J2 स्टार। तो कॉस ऑफ J1 स्टार J2 स्टार की वैल्यू क्या मिली हमको, कैपिटल J स्टार स्क्वायर माइनस J1 स्टार स्क्वायर माइनस J2 स्टार स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस J1 स्टार J। तो ये कॉस ऑफ J1 स्टार J2 स्टार की वैल्यू मिली। तो ये वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 11 में। ओके, तो इक्वेशन नंबर 11 क्या है, यह है इक्वेशन नंबर 10 क्या है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 10। तो इस इक्वेशन नंबर 10 में हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, कॉस ऑफ J1 स्टार J2 स्टार की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर। तो इक्वेशन नंबर 10 में पुट करने के बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन कॉस ऑफ J फ्रॉम इक्वेशन नंबर 12 टू इक्वेशन नंबर 10, इक्वेशन नंबर 10 में पुट करने के बाद हमको जो वैल्यू मिलेगी, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 10 इम्प्लाइज गामा 3 प्लस गामा 4 इज इक्वल टू ए J स्टार स्क्वायर, ओके, माइनस J1 स्टार स्क्वायर माइनस J2 स्टार स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस J1 स्टार इंटू J2 स्टार। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हमने कॉस ऑफ J1 J स्टार J2 स्टार की वैल्यू पूरी पुट कर दिए इनटू J1 स्टार और J2 स्टार ऑलरेडी था। तो ये देखो J1 स्टार इन J2 स्टार इन न्यूमरेटर, J1 स्टार इन J2 स्टार इन डिनोमिनेटर। तो दिस कैन बी कैंसल्ड आउट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू कैंसिल आउट। तो अब क्या बचेगी वैल्यू 2। तो ये 2 को हम फ्रंट में लेके जाएंगे, तो गामा 3 प्लस गामा 2 a बाई 2 J स्टार स्क्वायर माइनस J1 स्टार स्क्वायर माइनस J2 स्टार स्क्वायर। तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ गामा 3 प्लस गामा 4 दैट इज a बाई 2 J स्टार स्क्वायर माइनस J1 स्टार स्क्वायर माइनस J2 स्टार स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 13। तो इस तरीके से हमको गामा 3 प्लस गामा 4 भी मिल गया। तो गामा 1 भी मिला हमको, गामा 2 भी मिला, अब गामा 3 प्लस गामा 4। तो गामा 3 प्लस गामा 4 इज a बाई 2 J स्टार स्क्वायर माइनस J1 स्टार स्क्वायर माइनस J2 स्टार स्क्वायर। गामा 1 और गामा 2 कहाँ पर मिला, गामा 1 एंड गामा 2 वी ऑलरेडी फाइंड आउट इन इक्वेशन नंबर, कौन से इक्वेशन थे वो,
ओके, दिस इक्वेशन नंबर 7 एंड 8। तो 7 में दिस इक्वेशन नंबर 7 गामा 1 मिल गया, ये वैल्यू a1 डैश डिवाइडेड बाय 2 j1 स्टार स्क्वायर माइनस l1 स्टार स्क्वायर माइनस s2। गामा 2 की वैल्यू मिल गई हमको a2 डैश डिवाइडेड बाय 2 j2 स्टार स्क्वायर माइनस l2 स्टार स्क्वायर माइनस s2 स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8। और उसी तरीके से अभी हमने ये लॉन्ग प्रोसीजर से हमने क्या निकाला, ओके, लॉन्ग स्टेप से हमने निकाला गामा 3 प्लस गामा 4। तो अभी चारों वैल्यूज हमें मिल गए। तो नाउ गामा 3 प्लस गामा 4 इज a/2 j स्टार स्क्वायर माइनस j1 स्टार स्क्वायर माइनस j2 स्टार स्क्वायर। तो ये सारे के सारे जो वैल्यूज है गामा 1 प्लस गामा 2 प्लस गामा 3 प्लस गामा 4, दिस from those values we can find out the total interaction energy, and total interaction energy in LS, sorry, here is JJ coupling, not LS coupling. Okay, we are deriving the equation for JJ coupling, okay, not LS coupling. So total interaction energy for in JJ coupling, that will be gamma is equal to gamma 0 minus gamma 1 plus gamma 2 plus gamma 3 plus gamma 4. तो gamma 0 क्या है? गामा 0 इज द टर्म वैल्यू ऑफ हाइपोथेटिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा। तो गामा 0 से जब तुम पूरा टर्म्स को माइनस करते हो, गामा 0 से पूरा गामा 1 प्लस गामा 2 प्लस गामा 3 प्लस गामा 4, ये सारे सम को माइनस करते हो तो वी विल गेट द टोटल इंट्रैक्शन एनर्जी। तो टोटल इंट्रैक्शन एनर्जी इज गामा इक्वल टू गामा 0 माइनस गामा 1 प्लस गामा 2 प्लस गामा 3 प्लस गामा 4। सो गामा इज इक्वल टू गामा 0 माइनस गामा 1 प्लस गामा 2 प्लस गामा 3 प्लस गामा 4। और गामा 1 की वैल्यू क्या है? a1 डैश डिवाइडेड बाय 2 j1 स्टार स्क्वायर माइनस l1 स्टार स्क्वायर माइनस s1 स्टार। गामा 2 की वैल्यू क्या है? a2 डैश j2 स्टार स्क्वायर माइनस l2 स्टार स्क्वायर माइनस s2। और अभी हमने गामा 3 प्लस गामा 4 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 13 से निकाली, a/2 j स्टार स्क्वायर माइनस j1 स्टार स्क्वायर माइनस j2 स्टार स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 से हमने गामा 1 की वैल्यू निकाली, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 से हमने गामा 2 की वैल्यू देखा, और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 13 से गामा 3 प्लस गामा 4 की। तो ये सारे वैल्यूज गामा 1 गामा 2 गामा 3 गामा 4 पुट करने के बाद हमको मिलेगा टोटल इंट्रैक्शन एनर्जी। नाउ दिस इज द टोटल रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रैक्शन एनर्जी फॉर JJ कपलिंग। तो इस तरीके से हमने JJ कपलिंग में इंट्रैक्शन एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव किया। तो दिस इज द लास्ट एक्सप्रेशन फॉर द इंट्रैक्शन एनर्जी इन JJ कपलिंग। ओके, तो इस तरीके से हमने JJ कपलिंग का इंट्रैक्शन एनर्जी